अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम समर पैक दी एजुकेटर कैंपस क्लास 5 का सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में काम करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 है इफ़ पेंगुइन को टॉक, बिंगोज स्टोरी है। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिखाया जा रहा है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे पैराग्राफ दिखाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने सवालात के जवाब देने हैं। माई नेम इज़ पिंगो, आई एम a 2 years old पिंगो, आई लिव विद ऑल द अदर एम्पर पेंगुइन्स इन अंटार्कटिका नियर द साउथ पोल। देयर आर सो मैनी there are no emperor penguins anywhere else, not even at the North Pole. I live together with many other penguins. Together we form a colony. We spend our whole lives in Antarctica, where the temperature can drop to 75 F. Emperor penguins are the largest penguins in the world. The tallest in my colony is Pablo, who is 4 feet tall. That is about the same height as a 7-year-old. Emperor penguins are heavy too. Pablo weighs more than 100 pounds. I am not as big as Pablo. At 3 feet tall, I am as big as I will get. I was fully grown by the time I was 9 months old. A funny thing about us is that we are birds with wings but can't fly. We use our wings to help us swim faster underwater. Most emperor penguins fly. We use our We use our wings to help us swim faster underwater. Most emperor penguins live 15 to 20 years. Polly, a member of our colony, will be 38 this year. She is really old for a penguin. I am getting a bit worried about the future of emperor penguins. Climate change is causing change to the Antarctic sea ice that could hurt us. Scientists say we could be extinct by 2100 if global warming does not stop. That is very scary thought. Choose the correct answer है आगे देखिए। How tall is the tallest penguin in Pingo's colony? 3 feet, 4 feet या 7 feet? यहाँ पे आएगा 4 feet. A group of penguins that live together is called a colony. नेक्स्ट देखें, इस तरह कुछ और आंसर्स दिए MCQs टाइप 3 आंसर्स दिए हैं, उनमें एक पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट देखें, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, आपको ठीक से नज़र आ रहे होंगे। वाई इज़ पिंगो वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ एम्परर पेंगुइन्स? क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। हाउ कैन वी हेल्प पिंगो इन सेविंग द अंटार्कटिक सी आइस? ये भी आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए। टुगेदर, विद ईच अदर, ग्रोन, गेट टालर, funny, amusing, member, a person belongs to a particular group. Worried, disturbed, use the words given above to make meaningful sentences. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे टुगेदर, आई लिव टुगेदर विद मैनी अदर पेंगुइन्स। ग्रोन, आई वॉज फुली ग्रोन बाय द टाइम। फनी थिंग अबाउट अस is that we are birds with wings. Member, Polly is a member of our colony. Worried, I am getting a bit worried about the future. नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैं फिर एक एक्टिविटी 2 में एक पैसेज दिया गया है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग ही कुछ नीचे आंसर्स दिए हैं, उनके आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी? जेम्स। व्हाई डिड जेम्स लाइक टू डू? James loved to play with different things and explore them. He always trying to make them better. Next question की तरफ देखिए। Did James' idea and invention always work? No, James' ideas and inventions did not always work. Did James ever give up when his ideas failed? James failed many times, but he never gave up. He always kept trying and learning from his mistakes. What did James invent that worked? James finally invented something that worked. He created a new type of engine that was more efficient. Suggest a suitable and interesting title for this story, James' ideas and inventions. Next देखें, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, उनके मीनिंग लिखने हैं आपने। एक्सप्लोर, ट्रैवल ओवर,
invent, create, innovate, created, produced, efficient, well organized, proud, glad about something। यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए गए, उनके सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। यूज words given above to make meaningful sentences. Explore. James loved to play with different things and explore them. Invent. James was inventing a new thing. Created. He created a new engine. Efficient. James was an efficient boy. Proud. James was so proud of himself. एक्टिविटी नंबर 3 देखें, यहाँ पे भी एक पैसेज दिया गया है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके भी आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं। वेयर डिड इकरा लीव द नोट फॉर साकिब? इकरा लेफ्ट द नोट फॉर साकिब ऑन द डोर। नेक्स्ट देखें, वेयर डिड इकरा लीव की? अब अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन साकिब yelled एट द पैरेट? Why did not Saki want to come back and finish repairing oven? Suggest a suitable and interesting title for the story. Next देखें, कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। रिपेयर है, मैंड, अराइव्ड, कम, गेट, दीज, पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, बेटर, ट्रबल, मीनेस्ट, अनकाइंड, स्क्रेच, कंप्लेन, येल्ड, साउंड, फ्राइटेंड, अफ्रेड, कॉज, सॉर्ट, ओरिजिन, सोर्स। नेक्स्ट देखें, इन्हीं कुछ वर्ड्स हैं। यूज़ द वर्ड्स गिवन टू अबव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं आपने। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखें, एक्टिविटी नंबर 4 पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स है। जो काउंटेबल नाउन्स है यानी कि वो नाउन्स जो हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो जो हम गिन नहीं सकते, किसी चीज़ को की मिकदार जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जो काउंटेबल है उन पे सी लिखेंगे, जो अनकाउंटेबल आप उस पर यू लिखेंगे बॉक्सेस में। नेक्स्ट देख लें, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए एक्टिविटी नंबर 5 में। इरेगुलर वर्ब्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। रन, रैन, सिंग, सैंग, ड्राइव, ड्रॉप, ईट, एट, डाइव, डाइव्ड, राइट, रोड, ड्रिंक, ड्रैंक, रीड, रीड ही आ जाए। गो, वेंट, शेक, चोक या शेक लिख देंगे। मीट, मैट, फॉल, फेल, स्टडी, स्टडीड, बेक, बेक्ड, कैच, कॉट। नेक्स्ट देखें, एक्टिविटी 6 है। ऑपोजिट एडजेक्टिव्स दिए गए। राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच एडजेक्टिव। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम द वर्ड बैंक। यहाँ पे ऊपर वर्ड बैंक में कुछ ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये इधर लिख लेने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी नंबर 7 है। कंप्लीट ईच स्माइल यूजिंग द पिक्चर एज क्लूज। कुछ पिक्चर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये नीचे भी है, कंप्लीट ईच स्माइल यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज। शिप है, फुल है, एबल है, कुछ वर्ड्स आ दिए, इनके साथ मिलाकर आपने इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आज एक्टिविटी नंबर 8 है। टॉमी एंड हिज, यहाँ पे बताया गया स्टोरी आपने लिखनी है एक लड़के के बारे में जो अपनी मदर का पसंदीदा गुलदस्ता तोड़ देता है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए। उससे आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है। टॉमी एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द हाउस। सडनली दे रीच्ड इन द ड्राइंग रूम वेयर हिज मदर ब्यूटीफुल वेज डेकोरेटेड। टॉमी सडनली टच द वेज ड्यूरिंग रन थ्रू दैट place. The vase broken and tore into pieces. Tommy was frightened for his mother. His mother rushed the drawing room to hear the loud voice of something broken. Tommy apologized his mother. His mother was a nice lady. She said, "Did not worry. Accident happened sometime, but you must be more careful and mindful in the future." Moral: Tommy got lesson that he must be careful during playing in future. नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। एक्टिविटी नंबर 9 है। कंपोजिशन है। यहाँ पे आपने किसी भी ओकेजन के बारे में लिखना है, या बर्थडे है या किसी और भी ऐसे ओकेजन के बारे में। कहीं आप सफ़र पर जाते हैं, तफरीह पे जाते हैं, कोई भी अच्छा जो आप अच्छे से जिसके बारे में आपको खुशी मिली हो उसके मुताबिक आपने उसको लिखना है। हम बर्थडे पार्टी के बारे में लिखेंगे। मिस अलीज़ा वाज अ ब्यूटीफुल एंड नाइस लुकिंग लेडी, kind lady who teaches her students politely. All the students were very happy.
with her intelligent behavior. All the students decided to celebrate the birthday of his Miss Elise in the school. They decorated the classroom. The room was filled with joy as our classroom celebrated our teacher's birthday, an event that brought together students, teachers, and the school staff in a jubilant way. Colorful decorations and a delightful birthday cake took center stage, surrounded by eager children. We do not forget that happiest moment in our coming life. नेक्स्ट एक्टिविटी 10 की तरफ आ जाए। यहाँ पे एक स्टोरी राइटिंग दी गई है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन। यहाँ पे आपको दो बच्चे दिखाए जा रहे हैं जो स्कूल से आते हुए एक बड़े से हॉल में गिर जाते हैं। उससे रिलेटेड आपने तस्वीर दे के कहानी क्रिएट करनी है। One sunny afternoon, Ali and his sister Sarah were walking home from school. They decided to take a shortcut through the park. As they were walking, Ali suddenly fell into deep hole covered with leaves and branches. The screamed for help. Sarah quickly ran towards the hole. Ali cried, "Sarah, please help me. I am in danger. Sarah, help me fast." Sarah looked around herself to try to find something for helping her brother. Suddenly, she saw a long branch of tree and grabbed it and lowered into the hole. And she instructed Ali, "Ali, please caught the stick of branch and tried to come out." Ali done that and came out the hole. Ali hugged his sister and thanked to Sarah for helping and saving his life. They also decided to inform the authority about the dangerous hole. Then they went back home safely. Next activity 10 की तरफ आ जाएं। Write a letter to your father on the Father's Day to wish him and share your feelings of love and respect for him. यहाँ पे आपने पहले एग्जामिनेशन हाँ लिखना है, सिटी ABC, डेट मेंशन करनी है। डियर फादर, अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू विश यू हैप्पी फादर्स डे. आई जस्ट वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू टेल यू हाउ मच आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू फॉर आवर फैमिली. यू आर माई सुपर हीरो and feel so lucky to have you as my dad. One of my favorite memory with you is spending holidays in a beautiful valley with you during my summer holidays. You do much care me and family. You also celebrate birthday parties with full of joy. Your loving son XYZ. नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे हमें मैथ के बारे में बताया गया। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड वर्ड्स हैं। जो वर्ड्स हैं इन्हें आपने स्पेलिंग में लिखना है। नीचे क्वेश्चन वर्ड नंबर इज़ 5002 लेस दैन 564,125। आपने इसमें से माइनस कर देना आपने बड़ी रकम में से छोटी रकम को। नेक्स्ट नंबर वर्ड नंबर शुड बी एडेड टू 345,152 टू गेट 865,120। आपने यहाँ पे इस नंबर को निकालने के लिए कि कौन सा नंबर ऐसा ऐड करेंगे कि हमारे पास ये बड़ी रकम 865,120 आ जाएगा। आपने 865,120 में से पहले आपने 345 को 150 को माइनस कर देना। उसके बाद जो रकम आप में आएगी वो आपने फर्स्ट वाली रकम के अंदर ऐड कर देनी, तो आपके पास ये रकम आ जाएगी कि क्या कौन सी ऐसा रकम थी जो आपने इसमें प्लस की थी। नेक्स्ट देखें, ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनको आपने प्लस करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, एक साइन दिया गया है जो बड़ी रकम है उसका और जो छोटी रकम है उसके बारे में। नेक्स्ट देखें, मैजिक स्क्वेयर्स है। कंप्लीट द मैजिक स्क्वेयर, नॉट चूज़ द सेम नंबर ट्वाइस इन अ स्क्वेयर। ये इस तरह से आपने फिल कर लेना है और स्क्वेयर में चारों बॉक्सेस से जिस तरह से भी आप देखें ये आपके पास नंबर 14 आना चाहिए। रोज़ में देखें, कॉलम में देखें, आप किसी भी तरफ से उसको सेट करेंगे आपके पास 18 आ जाइए। ये मैजिक स्क्वेयर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। सब्ट्रैक्ट करना आपने इसको, ये क्लू है। एक्टिविटी नंबर 7 है, व्हाट्स नंबर, फॉलो द क्लूज, हाउ टू फिगर आउट द नंबर इन दिस मैथ रिडल, क्रॉस आउट एवरी नंबर दैट द क्लू एलिमिनेट एट द एंड, यू शुड बी लेफ्ट विद ओनली वन नंबर। ये नीचे इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई, उसको देख के आपने एक क्लू सेट कर लेना है। नेक्स्ट देख लें,
एक्टिविटी नंबर 8 है सुडोको पजल है। द फोर मल्टीप्लाई फोर स्केयर मस्ट बी फिल्ड इन नंबर्स फ्रॉम 1 to 4 विद नो रिपीटेड नंबर इन ईच लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड डायगोनिकल। फर्स्ट लाइन में देखें 4 था, 1 भी था, हमारे पास 2 भी था। जो नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने जहाँ पे उसकी जगह जिस लाइन में वो जो नहीं है नंबर उसको आपने वहीं पे सेट कर देना। नेक्स्ट देख लें, यू आर रिक्वायर्ड एक्ट नंबर 9 है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बुफे विद गुड प्लेटर्स फॉर लाइट स्नैक्स, 3 bites फॉर पर्सन फॉर अ लाइट मील, अलो 6 bites पर पर्सन एंड फुल मील हाउ 10 bites पर पर्सन। आपने 300 को मल्टीप्लाई 6 का करेंगे तो 800 आपके पास आंसर आएगा। 40 गेस्ट हैं, बाइट्स के लिए 10 से मल्टीप्लाई तो 400 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई रेसिपी इनफ फॉर 1 slice, कंप्लीट द टेबल फॉर द क्वान्टिटीज़ शोन इंक्लूड सूटेबल ऑफ द मेजरमेंट। इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, स्लाइसेस दिए गए हैं, तो उसको आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 स्लाइसेस आपके पास आ जाएंगे। इसी तरीके से 25 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 750 आएगा। इसी तरीके से स्लाइसेस को 12 स्लाइसेस पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, फिर 25 के साथ जो भी डिजिट है उसको 30 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आंसर्स निकलते आएंगे। नेक्स्ट एक क्लू है जो इसका एक एक्टिविटी नंबर 10 में क्रॉस पजल है। इसके क्लूज़ इधर दिए गए हैं। पहले इन सब नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने अक्रॉस डाउन में ये पज़ल सॉल्व करनी है। डाउन में मतलब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आपने लाइन की सूरत में आंसर्स लिखने। अक्रॉस आपने वर्टिकली यानी कि लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आपने ये नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए, 11 इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। आपने फर्स्ट डिजिट लेना है, उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे क्रॉस लगा देना, फिर सेकंड डिजिट को अपने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाए, जो भी आएगा इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें इनको प्लस करना है तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ देखें, साइंस एक्टिविटी है। देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एक्टिविटी 1 में टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फॉर ईच टाइप ऑफ एनिमल। कुछ एनिमल्स दिए गए, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो जिसके साथ सूटेबल है वहाँ पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, वर्ड बैंक है। एक्टिविटी 2 स्ट्रक्चर ऑफ सीड है। सीड का स्ट्रक्चर दिया गया है, वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स दिए गए वो आपने वहीं पर खाली जगह पर फिल कर देने। नेक्स्ट एक एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग है, द सीड कोट, उसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद द फूड स्टोर है, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लिखिए। आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, अच्छे से आंसर्स लिख लीजिए। द बेबी प्लांट है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए, एक्टिविटी नंबर 3 है इंडेंजर्ड एनिमल रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि ऐसे एंडेंजर्ड वो एनिमल जिनका दुनिया से ख़त्म हो जाने का ख़तरा हो। यहाँ पे हमने पांडास के बारे में लिखा है, रेड पांडा या ब्लैक पांडा के बारे में इंफॉर्मेशन है। उनके वेट के बारे में आपने हाइट लिखना है, वेट मेंशन करना है, कलर, फूड, हैबिटेट और लाइफ स्पेन। उसके बाद कुछ आंसर के क्वेश्चन आपने लिखने हैं। द एनिमल इज़ इंडेंजर्ड बिकॉज, वजह बतानी है कि इस वजह से वो एनिमल को ख़तरा है कि वो उनका दुनिया से ख़त्म हो जाने का ख़तरा है। 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके बारे में आपने मेंशन करने। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी 4 में आपको क्लासिफिकेशन दी गई है ऑफ लिविंग थिंग्स की। इट इज़ अ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कुछ नाम दिए गए हैं। जो फ्लावरिंग है उन पे आपने टिक करना और नॉन फ्लावरिंग पे आपने क्रॉस का निशान लगा देना। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आज एक्टिविटी नंबर 5 है रिसर्च वर्क, आपने सर्वे ऑन प्लांट्स है। ये आप देखें, कलेक्ट सम लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड ऑब्जर्व देयर शेप एंड वेरिएशन, डिज़ाइन ऑफ वेन्स करना है, ड्रॉ करनी है आपने कुछ वेन्स। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने उनके बारे में लिख देना। यहाँ पे रोज़, मैपल, ट्यूलिप के बारे में लिखा है। ये डाइकोट हैं या मोनोकोट हैं वो भी आपने टिक कर देना। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी नंबर 6 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे वर्ड बैंक दिया गया है, कुछ यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, उसको आपने सर्कल करके कुछ ये वर्ड्स बनाने। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, राइट अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ दीज की टर्म्स के बारे में लिखना है। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन लिखनी है आपने। अ टाइप ऑफ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय किलिंग और इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन्फेक्शन का लिखना है, इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन द बॉडी विच काज डिफरेंट डिजीज इज कॉल्ड इन्फेक्शन।
वैक्सीनेशन है प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अन वैक्सीन स्टिमुलेट एंड इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम टू डेवलप अडप्टिव। नेक्स्ट आज एक्टिविटी नंबर 7 है। यहाँ पे एक कुकिंग रेसिपी बनाएंगी। यहाँ हमने कौरमे के बारे में बताया, बिरयानी, नूडल्स, सैंडविचेस, किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, इक्विपमेंट बताने हैं, फिर आपने उसका नीचे इंस्ट्रक्शंस बताना है और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में उसका बताना है कि आपने उसमें क्या होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ेंगे हम। एक्टिविटी नंबर 1 पे देखें, कंप्यूटर साइंस, ड्रा द फ्लो चार्ट सिंबल्स ऑफ फॉलोइंग एंड राइट डाउन देयर फंक्शंस। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए, नेम्स हैं उनके, फंक्शंस के नेम, कुछ सिंबल्स हैं उनके नेम्स हैं, उनकी सिंबल्स हमने ड्रा करनी है। फिर उनका फंक्शन के बारे में लिखें कि उनके क्या क्या फंक्शन है, वो क्या काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी नंबर 2 है, ड्रा द फ्लो चार्ट फॉर मेकिंग योर लेमनेड। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 की तरफ आ जाए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, डिफाइन एन एल्गोरिथम, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, गिव एन एग्जांपल है, आप आंसर्स देख सकती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, एक्सप्लेन माइक्रो प्रोसेसर्स, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, डिफरेंट बिटवीन रोम एंड रैम, कंप्यूटर के बारे में आपने लिखना है। फंक्शन है, राइट अ नोट ऑन एनी 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर में हमने डिफरेंट लिखना है। कुछ पार्ट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर आपने ड्रा करने हैं, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, यहाँ पे आपने 3 टाइप्स के कंप्यूटर ड्रा करने हैं और उनकी फंक्शन, उनके बारे में मालूमात लिखनी है। डेस्कटॉप है, टैबलेट है और लैपटॉप। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, एक्टिविटी नंबर 5 है, चूज़ 3 कंप्यूटर एसेसरीज, जॉयस्टिक्स, वेबकैम, हेडफोन्स या क्रिएट अ पोस्टर शोइंग देयर फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंट इन मॉडर्न कंप्यूटिंग। आपको कुछ पिक्स दी गई हैं, उसके बारे में उसको आपने ड्रा करना है, उनके फंक्शंस के बारे में लिखना है। ये वीडियो कंट्रोलर दिखाया जा रहा है, वेबकैम है और कीबोर्ड के बारे में लिखा गया। नेक्स्ट हम उर्दू के बारे में करेंगे, क्या क्या है। आमे में से अल्लामा इकबाल की दर्जन नज़मों के नाम दिए गए, उनको इसमें से आपने सर्कल करना है। साल के मुताबिक दर्जन मुफरद अल्फाज, मरकब अल्फाज बना दिखाए गए हैं, वो आप अच्छे से देख लें। दिए पढ़ाए गए इस बाग में से कोई से अल्फाज मुख्तलिफ कीजिए और इनके जुमले बनाइए। अल्फाज हैं, उनके कुछ जुमले बनाने हैं आपने। नेक्स्ट सरगर्मी में हमें एक तस्वीर दिखाई गई है, दी गई तस्वीर को मंजर की निगारी करनी है। यहाँ हमने उसकी तस्वीर की मंजर निगारी की है। तस्वीर में दिखाया जा रहा है, गांव का मंजर दिखाया जा रहा है, कुछ लोग बैठे हैं और वहाँ भी कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, उसके मुताबिक हमें मंजर निगारी की है। सरगर्मी नंबर 4 में कहना बड़ों का मानो कि नज़म है, उसके नज़म को आप अच्छे से पढ़िए और उसके मुताबिक सवालों के जवाब दीजिए। जैसे उनके शायर का नाम, नज़म के हम आवाज़ अल्फाज शनाख्त करके लिखने हैं आपने। नज़म के किसी एक बंद की आपने नस्ल लिखनी है। नज़म अगला सवाल है, नज़म में कोई से 2 बंदों का मतलब लिखिए। आपने ये मतलब इधर लिखना है, उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट इसका खुलासा देख लें आप। नज़म का जो बंद आपको बहुत पसंद है और क्यों पसंद है वो आपने बताना है। यहाँ पे सरगर्मी नंबर 5 में दांत साफ़ करने वाले ब्रश और टूथब्रश के दरमियान मुकालमा है, जिसको आपने लिखना है अपने अल्फाज में। दांत और ब्रश आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, वो मुकालमा आपने सेट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, तस्वीर की मदद से कहानी लिखकर कहानी का अनुमान सरगर्मी नंबर 6 में है। मेरा ख्वाब, एक अनुमान लिखना है। एक स्टोरी है, एक लड़का है जिसको कहीं अकेले घूमने जाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं जाने देते हैं। लेकिन वो फिर एक रात सो जाता है तो वो ख्वाब में देखता है कि वो किसी ऐसी जगह चला गया है जहाँ पे वो हैरत अंगेज़ चीज़ों को देखता है। यह अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी अच्छे से।
नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 7 में ये हमें एक कहानी दी गई है नौशेरवा बादशाह के बारे में, उसका दौरे हुकूमत, वो अच्छे से पढ़नी है और कुछ सवालात के जवाब देने। नौशेरवा ने ज़मींदार के वहाँ पनाह क्यों ली, ज़मींदार ने नौशेरवा से कैसा सलूक किया, ज़मींदार ने नौशेरवा के लिए अंगूर किसी दूसरे बाग से क्यों मंगवाए। या आपने पैराग्राफ पढ़ के सारा उसके आंसर दे रहे हैं, लिखने आपने जवाब। नौशेरवा ने ज़मींदार को दरबार में बुलाकर क्या इनाम दिया, आपने इस कहानी से क्या सीखा, इस कहानी का अनुमान लिखना है। इबारत में तलाश करके आपने मरकब अल्फाज लिखने हैं। हम सिफ़त अल्फाज हैं, सारे आपको दिखाए जा रहे, कोई से 5 इसम नकरा, कोई से 3 इलामात औकाफ। कहानी में से कोई से 5 अल्फाज मुंतखब कीजिए। अल्फाज मानी दिए गए हैं। कहानी का खुलासा देख लें। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें सरगर्मी नंबर 8 पे। अगर लैपटॉप कंप्यूटर को अपनी अहमियत बतानी है तो वो किस तरह बताएगा अपनी आबिदी की सूरत में। नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 9 पे देखें। कायदे-ए-आज़म की तस्वीर दिखाई जा रही है, उसके मुताबिक आपने कायदे-ए-आज़म पर मज़मून लिखना है। इस तरह ये एक्टिविटी दी गई है। तालीमी मनसूबा है, सरगर्मी नंबर 10 है। माहौलियाती आलूदगी के इसबाब पर हमने एक किताबचा तैयार किया, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। इस्लामियत है। इस्लामियत के देखें सरगर्मी नंबर 1 में दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। आहत के लफ्ज़ी मानी क्या है। आहत के लफ्ज़ी मानी है आखिरी ज़िंदगी के हैं। दुनियावी ज़िंदगी का मकसद क्या है। दुनियावी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना और इसके अहकामात पर अमल करना। अमालनामे से क्या मुराद है। इसी तरह आंसर को कसम दिए। किरामन कातिबीन क्या काम करते हैं। क़यामत के दिन अमालनामों के साथ क्या किया जाएगा। आहत के बारे में किसी एक कुरानी आयत और हदीस का तर्जुमा आपको दिया गया है, वो देख लें। कामयाब हो आखिर में कामयाब होने के लिए हमें कौन से काम करने चाहिए, 12 काम आपने लिखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाए। कुछ सवाल दिए गए हैं सरगर्मी नंबर 2 पे। अतात रसूल से क्या मुराद है। अतात रसूल की अहमियत मुख्तसर अल्फाज में लिखिए। अकीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम। जब सारे सवाल देख सकते हैं। अतात रसूल के बारे में कुरानी आयत और हदीस का तर्जुमा। दरअसल में से किसी एक को मुख्तसर नोट लिखना आपने। बैत अक़बा व सानिया और एक मुहाद मदीना दिया गया। कोई एक टॉपिक का लिखना। हमने यहाँ पे बैत अक़बा व सानिया के बारे में मालूमात दी हैं आपको, आप देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। यहाँ पे आपने कुछ इस्लामी महीनों के नाम लिखने हैं। नीचे कुरान मजीद की मदद से पारों के नाम आपने लिखने हैं। यह हमें एक तलीमी मनसूबा में दिया गया था। चार्ट पे आपने या तो सूरह फातिहा तर्जुमे के साथ लिखी या दुरूद इब्राहिमी। नेक्स्ट नाज़रा कुरान की तरफ आप आ जाएं। नाज़रा कुरान पारा नंबर 19 और 20 के गौर से पढ़ी, सवाल के जवाब दीजिए। पारा नंबर 19 का नाम आपने लिखना है, 20 का, 21 का। पारा नंबर 19 के रुकूत की तादाद 20 की बताई गई है और 21 के रुकूत की तादाद। मज़कूरा वाला पारों में मौजूद सूरतों के नाम लिखे। नीज़ बताई कि वह सूरतें मक्की हैं या मदनी। हर सूरत में मौजूद आयात की तादाद बतानी है। सूरत का नाम मक्की है या मदनी है वो बताना, आयात की तादाद बतानी है। आगे देखें। माशरती इल्म का काम है। सरगर्मी नंबर 1 पे देखें। डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारियाँ बयान करनी है आपने। डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो देख लें। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। सरगर्मी नंबर 2 पे फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक सियासी जमात तश्कील दे रहे हैं। अपनी सियासी जमात के बारे में दरअसल मालूमात दीजिए। आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ हमने नाम रखा है। उसका मंशूर क्या, अदल इंसाफ कायम करना, अवाम को तलीम और सहूलियत वहाँ फरहम करना, बुनियादी हकूक़ की फरहमी। अपनी सियासी जमात तश्कील देने की वजूहात क्या थी। अवाम को 5 से 7 वजूहात लिखे। अवाम को रोज़गार की फरहमी यकीनी बनाना, कानून के नफाज के अमल को यकीनी बनाना, महंगाई को कंट्रोल करना, लोगों की मदद करना, बिजली पानी गैस पेट्रोल वगैरह की फरहमी का अमल दुरुस्त करना, नज़्म व ज़ब्त को कायम करना ताकि माशरा मुस्तहकम हो सके। नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 3 पे देखें। क्या आपने अपने की दुनिया कभी किसी की हक तलफी होते हुए देखी है, और अगर देखी तो आपने उसके लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी, वो आपने अपनी कोशिश आपने जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। सरगर्मी नंबर 4 है।
क्या कभी आपका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ है, और अगर हुआ है तो उस तनाज़े को हल करने हमने क्या इक़दाम किए। आपने जो इक़दाम किए वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। सो कमी नंबर 5 है, तर्ज़ तस्वीर को गौर से देखिए, किस सूबे की अक्कासी कर रही है उसके बारे में मालूमात लिखें। ये कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अक्कासी कर रही हैं, और उसके मामले हम बारे में हमने कुछ ये सेंटेंसेस भी लिखे हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक सरगर्मी दी गई है, 21वीं सदी की किसी भी एक अहम ईजाद पर इंटरनेट की मदद से सर्च कीजिए, इस ईजाद का नाम लिखना, उसके फ़ायदे नुकसानात। इसका भी चार्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारा समर पैक समझ में आ गया होगा। जहाँ से आपको नहीं समझ में, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात मिल सके।